Good afternoon, everyone. I welcome you all in this in-house training program on the topic teaching method and strategy. Myself, Rishi Kumar Dubey, STNC of Sant Aurobindo Academy. I am going to organize in-house training program on the topic teaching method and strategy. Let me tell you that I have completed around 4 to 5 training programs conducted by CBSE on the topic teaching method and strategy. So I am going to organize this training program on the same previous experience. Dear teachers, this training program is of 1 hour duration. I hope you all listen carefully. And first of all, I would like to tell you that what I am going to cover in this online training program in 1 hour duration. So let's start. Now I am going to share the screen. Am I audible? Okay. Before there, this is the, as you can see, this is the content of the today webinar. Before I start the overview, I want to ask you a question. There was a time when you were also a student, but now you have become a teacher. In the change that took place from student to teacher, what change do you see in the teaching method? You must have guessed, at my time, my teacher used to teach like this method and we use this method. So you people tell me what changed? You can answer it in the chat box. You can put answer in the chat box. There, my question is that there was a time when you were also a student, but now you have become a teacher. In the change that took place from student to teacher, what change do you see in the teaching method? You must have guessed, at my time, my teacher used to teach like this method and we use this method. So you people tell me what changed. You can put answer in the chat box. Okay. Yes. Yes, more interactive classes, hands-on learning. Good. Time management. Okay. Everyone gave the answer in the chat box. Okay. Now, first I start with overview. Dear teacher, as we know, teachers are the main asset of every country because they are nation builders. Teacher and education system play a vital role in the building an individual character, and great teachers have set example of changing their student lives. You can find an endless amount of story about how appropriate teaching methods and strategy have brought remarkable change in the student life. The art of teaching method is a lot. To be a successful teacher, one should know all the possible teaching methods and strategy and use them correctly because students learn better when their teacher know which teaching method will engage the student more. Now I'm going to share a very beautiful quote said by Bertrand Russell. He said, more important than the curriculum is the question of the method of the teaching and the spirit in which the teaching is given.
उनका कहना था कि पाठ्यचर्या से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षण के तरीके और उसका भावना का प्रश्न है जिसमें शिक्षण दिया जाता है। नाउ you will understand the difference between teaching methods and strategy, different teaching methodology and strategy, their advantage and disadvantage, and how a teacher should prepare himself before the class lecture. So let's get started with the difference between teaching methods and strategy. Method and strategy are two different terms, but both are essential to make a class full of students of different caliber and understand the same subject. As you can see, method is a process, procedure, or way of something is done or implementing a plan. While on the other hand, strategy is the goal, state of action, or plan to achieve one aim or some. Let me clarify it with an example. A strategy is how a teacher makes a whole year plan to complete a specific book or syllabus. And the method is how the teacher delivers the lecture or which way the teacher selects to do a task. In today's training, you people are going to see a lot of teaching method and strategy. And the idea of teaching method is one in which the learning of students occur the most. Teaching and learning are considered the two sides of a coin. And for completing the teacher side, teachers should consider all the teaching strategy and methods. The way of teaching is categorized into different types of teaching methods adopted by the teacher, and most of them are going to discuss today. So let's start with teacher-centered method. Am I audible? Okay. In teacher-centered method, the teacher is the only expert or an authority figure for the learners or students. देखिए, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें जो स्टूडेंट होता है वो अपना सारा फोकस जो होता है वो टीचर्स पे लगाता है। मतलब जो एजुकेशन सिस्टम होगा यहाँ पे वो सिर्फ टीचर के द्वारा ही उसको डिफाइन किया जाएगा। एक टीचर ही होगा, वही डिफाइन करेगा उसको कैसे टीच करना है, क्या टॉपिक उसको पढ़ाना है, किस बारे में उसको वहां पे लेक्चर देना है। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द टीचर। टीचर टॉक एंड स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन। यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होता है वो बात करता है और स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ सुनते हैं। यहाँ पे जो टीच फॉर्म है उसमें कोलैबोरेशन की बात नहीं की जाती। यहाँ पे सब कोई अलग अलग काम करता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना इंडिविजुअल अपनी गोल पे खुद फोकस करते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट गोल पे बात किया जाता है, ना कि यहाँ पे ग्रुप स्टडी या टीम बिहेवियर को इंकरेज किया जाता है। डियर पार्टिसिपेंट, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, ये आपका हो गया टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन मेथड के बारे में। अब जो देखिए, ये जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है यह एक ट्रेडिशनल मेथड है। पहले यहाँ क्या होता था, ये जो एजुकेशन सिस्टम है आपका यही फॉलो किया जाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुआ। अब जो नई मतलब मॉडर्न थिंकिंग है वो आपका आ गया स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड पे, या स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड के ऊपर बेस्ड हो गया। और जब उससे ज्यादा डेवलप जब हुआ तब आ गया मिक्स सेंटर्ड मेथड, जो कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों मिलके बनाया गया है। लेट अस नाउ सी द एडवांटेज ऑफ टीचर सेंट्रिक मेथड। टीचर, व्हेन एजुकेशन इज टीचर सेंट्रिक, then classroom will be orderly, students are quiet, teachers retain full control of class and its activities. जो पूरा कंट्रोल होता है वो टीचर के हाथ में होता है। बिकॉज स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन, दे लर्न इंडिपेंडेंट एंड मेक देयर ओन डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अभी बात किए थे इंडिविजुअल गोल पे। अगर स्टूडेंट को हमेशा से ये बोला जाए कि आपको खुद पे फोकस करना है, आपको खुद के इंडिविजुअल गोल पे फोकस करना है, तो वो क्या करेगा, अपना डिसीजन को खुद बनाएगा। इससे उसका क्या होगा, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस जो होगा वो जनरेट होगा। एंड नेक्स्ट,
because teacher direct all classroom activities. You don't have to worry that student will miss an important topic. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टीचर को यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है, टीचर को बार बार वरी नहीं होना पड़ता है कि कोई स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर देगा, क्योंकि उसको सारा पता होता है, टीचर ही सारा लर्निंग करा रहा होता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लर्निंग कराए, क्या टॉपिक को ले, कितना टॉपिक को कवर करे। सो इट वाज एडवांटेज ऑफ द टीचर सेंट्रिक मेथड। नाउ कम्स टू डिसएडवांटेज of teacher-centric method. When the student work alone, they don't learn to collaborate with other students and their communication skill may suffer. तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो अकेले काम करते हैं, इस वजह से अकेले पड़ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेट नहीं करना सीख पाते, उनको ये नहीं पता चल पाता है कि कैसे आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट किया जाए, और इसके वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल उनका सफर करता है। टीचर सेंटर्ड मेथड और इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स, देयर माइंड्स में वांडर एंड दे में मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जब टीचर कोई चीज को कोई टॉपिक को पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता है, अक्सर आपके क्लास में ऐसा देखने को बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, और जबकि वो शांत बैठा है क्लास में, तो इसका ये भी मतलब है, आप ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि वो फिजिकली प्रेजेंट है बट उसका माइंड कहीं और है। आप बोल सकते हैं कि डाइवर्ट होने की चांस ज्यादा होता है टीचर सेंट्रिक मेथड में, क्योंकि वो क्वाइटली सुन रहा होता है, पार्टिसिपेशन उसके साइड का नहीं होता। एंड टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, आस्क क्वेश्चन एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जो आपका टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो क्वेश्चन पूछे और उनका खुद का वे ऑफ लर्निंग हो। सो ऑल दिस डिसएडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर मेथड। आई होप कि आपको आइडिया आ रहा होगा कि टीचर सेंटर मेथड कैसा होता है। ओके, यह एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, आप कह सकते हैं कि यह एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता है। आप कह सकते हैं कि यह थोड़ा अथॉरिटी वाला होता है, इसमें स्टूडेंट क्वाइटली बैठा रहता है, वो सिर्फ टीचर की बात को सुनता है, इस वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो सफर करता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। In this teaching method, the teachers play a dual role. When a classroom operates with student-centered method, student and instructor share the focus. Instead of listening to the teacher exclusively, student and teacher interact equally. Group work is encouraged and students learn to collaborate and communicate with one another. यहाँ पे क्या होता है, जो गोल होता है वो स्टूडेंट एंड टीचर मिल के बनाते हैं, उनका फोकस एक साथ होता है, यहाँ पे दोनों इक्वली बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बोल रहा होता है दूसरा सुन रहा होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप वर्क को इंकरेज किया जाता है। एंड द बेस्ट वे ऑफ टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड इज टू फॉलो द क्लास डिस्कशन, इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी स्ट्रेटेजी। सो दिस इज स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। नाउ let us see the advantage of the student centered method. In this method, students learn important communicative and collaborative skills through group work. तो हमें पता होता है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, यहाँ पे ग्रुप वर्क को प्रमोट करते हैं, टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, इसके वजह से कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, कोलैबोरेटिव स्किल इंप्रूव हो जाता है, और इसके अलावा स्टूडेंट लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग, आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। और इसके वजह से उनकी क्या हो जाती है, खुद की लर्निंग होती है, वे खुद से क्वेश्चन पूछते हैं और अपने टास्क को एक साथ मिलकर एक साथ पूरा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटी व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं
तो क्या होता है, उसके वजह से उनका पार्टिसिपेशन है वह बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो नई चीजें नई एक्टिविटी को सीखते हैं. सो ऑल दिस एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट सेंटर मेथड. नाउ कम टू डिसएडवांटेज of the teacher center student center method. Because students are talking in classroom may often be noisy. ये ज्यादातर होता है स्टूडेंट सेंटर मेथड में. देखिए, जो स्टूडेंट सेंटर मेथड होता है, डिफरेंट क्लास होता है, आपस में टीम या ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बातें होने लगते हैं क्लासरूम में, और क्लासरूम क्या हो जाता है, नॉइजी हो जाता है. टीचर्स may have to attempt to manage all student activity at once, which can be difficult when students are working on different stage on the same project. ये ज्यादातर टीचर्स फेस करते हैं. हमने टीम वर्क की बात की है, और हमको पता होता है कि क्लास में टीचर्स एक ही होता है. ऐसे सिचुएशन में क्लास में टीचर एक ही होता है. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब टीचर्स इंस्ट्रक्शन को देते हैं और जब टीम एक साथ काम करता है, तो एक साथ मैनेज करना टफ हो जाता है. मान लीजिए आपने क्लास में एक प्रोजेक्ट दे दिए. अब आपने प्रोजेक्ट तो दे दिया, बट सारी जो ग्रुप है वो अलग अलग काम कर रहा है, और उनकी जो स्टेज है वो अलग अलग है. सभी स्टूडेंट जब प्रोजेक्ट काम करते हैं आपस में, तो कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, तो आपको एक साथ मैनेज करना टफ हो जाता है, क्योंकि उनके स्टेजेस अलग अलग होते हैं और आपको मैनेज करना टफ हो जाता है. ये एक डिसएडवांटेज है टीचर के लिए. Some student prefers to work alone, so group work becomes problematic. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं, ग्रुप वर्क में काम करना पसंद नहीं करते हैं. टीचर ज्यादातर ऐसा होता है कि ग्रुप अगर टीचर्स बना देते हैं तो बोलते हैं मैं उस ग्रुप में नहीं रहूंगा. उनको एलोन काम करना पसंद करते हैं, तो वहां पे ये जो ग्रुप वर्क होता है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. उनका बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाता है. नाउ this is the all disadvantage of student centered method. Now comes to the next topic, that is lecture method. The lecture method is the oldest method of the teaching. This method refers to the explanation of the topic to the student based on the philosophy of idealism. लेक्चर मेथड में ऑफ टीचिंग क्या है, यह एक ट्रेडिशनल मेथड है, मीन्स पढ़ाने का एक पुराना ढंग बोल सकते हैं. पहले के समय में मेथड यूज किया जाता था, लेकिन आजकल ये मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है. स्कूल में ये ज्यादा बहुत यूज नहीं होता. आजकल ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, रोल प्ले मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, ये सारे मेथड को यूज करके टीचर पढ़ाते हैं. लेकिन पहले के जमाने में ज्यादातर लेक्चर मेथड को ही यूज किया जाता था, इसलिए इसे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड कहा जाता है. इसमें क्या है, टीचर टॉक, इसमें जो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन आती है वो टीचर से आती है. इसमें स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव लिसनर. इसमें स्टूडेंट कोई अपना ओपिनियन नहीं रख सकते हैं. ये ज्यादातर पॉसिबल कहाँ होता है, हायर एजुकेशन में. आप बोल सकते हैं कॉलेज में होता है ज्यादातर, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कवर करना होता है. ये प्राइमरी लेवल में पॉसिबल नहीं है. अगर हम छोटे बच्चे को लेक्चर मेथड से ही पढ़ाएं, लेक्चर मेथड से पढ़ाएं, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, ये टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगा. तो यह कहाँ पे होता है, हायर एजुकेशन में. इन दिस मेथड द टीचर पिक अ टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक डेफिनेशन, फैक्ट्स, इवेंट्स, प्रिंसिपल एंड क्लैरिफाई द होल पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट और द टॉपिक विथ रेलेवेंट एग्जांपल एंड प्रॉब्लम्स. Okay, so this is all the lecture method. Now advantage of the lecture method. Advantage of the lecture method, it is economical. It is economical, large student cover, save time, syllabus cover. Why it is economical? पहला ये economical है, इसका क्या मतलब है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता. ओके, आपको ज्यादा इसमें सामान नहीं लेना पड़ता. जैसे आज की टीचिंग मेथड में, जो मॉडर्न टीचिंग मेथड में है, उसमें रोल प्ले करना होता है, प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट है, तो इसमें बहुत सारे आपको टूल्स लेने पड़ेंगे, आपको कलर्स लेने पड़ेंगे, चार्ट पेपर लेने पड़ेंगे, थर्मोकोल, और बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट को बनाने में उसको टूल्स को यूज करना पड़ता है, तो उसमें पैसा खर्चा होता है. लेकिन इस मेथड में खर्चा नहीं होता.
तो आप बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिकल है। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को कवर कर सकते हैं। ज्यादातर कॉलेज वगैरह में पॉसिबल होता है, जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं और उसके एक टीचर पढ़ाता है और टॉपिक को क्लियर करता है। अगर आप एक साथ बहुत बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाता है, तो इट इज टाइम सेव कर जाता है, और सिलेबस भी टाइम पे कवर हो जाता है। सो दिस इज ऑल एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड, पैसिव लिसनर अगेंस्ट लर्निंग बाय डूइंग, मोनोटोनस। अगर हम एडवांटेज, अगर किसी भी मेथड का, किसी भी टॉपिक का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अगर पैसिव लिसनर, यहाँ पे पैसिव लिसनर का मीनिंग क्या है? पैसिव लिसनर मीन्स टीचर बोलता है और बच्चे जो है सिर्फ सुनते हैं, ना आप कोई इसका ओपिनियन ले रहे हैं, ना आप कोई सजेशन ले रहे हैं, ना कुछ डिस्कस कर पा रहे हैं। बच्चे इसमें क्या है? पैसिव लिसनर। आजकल हम लोग क्या बात करते हैं? बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं, लेकिन इसमें क्या है? इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लर्निंग, ये लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट है। मोनोटोनस, ये मोनोटोनस का क्या मतलब है? मोनोटोनस का मीनिंग है नीरस हो जाना। आप ज्यादातर देखते होंगे कि किसी का भाषण सुनना बच्चों को पसंद नहीं है। अगर आप भाषण देते जाएं तो बच्चे उसको पसंद नहीं करते हैं या उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल डिसएडवांटेज ऑफ lecture method. Now I'm going to talk a very important teaching method, that is interactive teaching method. Very interactive teaching method. This is a great teacher always think how to best engage their student and get them excited about learning, and that leads to trying out different interactive teaching method. देखिए, एक अच्छा टीचर हर वक्त सोचता है कि कैसे मैं अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट को सिखा सकूं, उनके पढ़ाई के प्रति कैसे मोटिवेट कर सकूं, और ये सोच हर वक्त उनको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे समय इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड बहुत ही बढ़िया विकल्प है। नाउ व्हाई वी नीड इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड। देखते हैं कि सब हमको इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड क्यों जरूरी है। व्हाई वी नीड इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड? Because without interaction you cannot come to the you cannot come to know whether you are able to convey the exact interaction. Interaction से आप स्टूडेंट के जो लेवल ऑफ नॉलेज है और जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। इंटरेक्शन के बगैर आप स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं ले जा सकते। यहाँ पे अब 3 मेन फायदे हैं इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड के। इसमें स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो बढ़ेगा, स्टूडेंट की जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा, और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और टीचिंग मेथोलॉजी में ये कहा जाता है कि फर्स्ट टीच टेल, देन टीच एंड देन ट्रेन। आपको पहले बताना है, फिर उसको सिखाना है, फिर आपको ट्रेन करना है, और सबसे पहले तो हमको स्टूडेंट का अटेंशन को गेन करना है, उनसे कनेक्ट होना है, और फिर मैसेज को कन्वे करना है। सो दिस इज द नीड। नाउ हाउ इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड विल बी हेल्पफुल टू द टीचर। आइए दूसरा रीजन हम देखते हैं कि क्यों हेल्पफुल है, कैसे हेल्पफुल है टीचर के लिए। टीचर हु इंप्लीमेंट इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड will be able to assess how well students are able to understand particular topic or subject. Interactive teaching application involve two-way communication that will be helpful to teacher to make adjustment in teaching process and approach. देखिए, ये जो मेथड है जो लर्निंग को बहुत बढ़ावा देता है, ये मेथड स्टूडेंट को भी मोटिवेट करती है। और इंटरैक्टिव मेथड में बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होता है। जनरली क्या होता है, लेक्चर मेथड में सिर्फ एक साइड से इंफॉर्मेशन शेयर होता है और बाकी सब पैसिव लिसनर की तरह बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप यहाँ कुछ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। कोई एक पार्टिकुलर इंसान को आप बोल सकते हैं कि चावल बहुत पसंद है, वो चावल खाना रोज चाहता है,
चावल मतलब वो रोज चावल खाता है, तो आप उनको हर रोज चावल देते रहिए, थोड़े दिन बाद उनको चावल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक ही चीज खा खा के लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, उस चावल को यूज करके कुछ नया चीज बना देंगे, उसी चावल को यूज करके नए चीज नए ये बना देंगे। जैसे आप बोल सकते हैं कि चावल से इडली बना दे, डोसा बना दे, तो वही चावल का बनाया हुआ चीज वो इंसान पसंद करने लगेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही अगर आप इंटरेक्ट करोगे, नए नए तरीके से, नए नए इंटरेक्टिव मेथड से अगर बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत है, और ये बहुत इफेक्टिव होगा। नाउ which are the points to ponder while implementing interactive teaching? Then encourage the student for participation, use questions that stimulate response, encourage discussion and hands-on approach. Use teaching aids that are appropriate for giving answer, create positive learning atmosphere, involve yourself student in teaching and learning. तो देखिए, स्टूडेंट को हर वक्त पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करना है। टीचर का तो यही काम है, एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है। वो आपका चॉक एंड टॉक हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो सकता है, बहुत सारे कन्वेंशनल और ये ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, एडवांस बोल सकते हैं, और लेटेस्ट टीचिंग मेथड के हैं जो, और टूल्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये डिसाइड करना है कि कौन से इस्तेमाल करें और कैसे स्टूडेंट को इंटरेक्टिव वे में पढ़ाएं। और स्टूडेंट को कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जैसे कि वो जवाब दे सके, जैसे आप बोल सकते हैं यस और नो, वो डिस्कस कर सके, आप कुछ ज्यादा सिखा सकते हैं। मेरा मानना है कि आप अगर नोन टू अननोन अप्रोच को यूज करें, आप जानते हैं कि कुछ टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई आंसर जवाब देने वाला नहीं है। ज्यादातर ऐसा होता है कि टीचर टफ अगर क्वेश्चन पूछ देते हैं तो बच्चे पहले डर जाते हैं, तो वो आंसर नहीं देते हैं। तो आप इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन पूछेंगे। जब इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे जवाब देने लगेंगे, तो आप उसमें इंटरेक्ट हो जाइएगा, बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे उनसे इंटरेक्ट होने के बाद हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज द point. Now next, what are the methods to engage students into interactive teaching? So various methods to interact the teaching, interactive teaching. First is brainstorming. Interactive brainstorming is the best in group session. Very good method to develop good ideas, creative thought. अब जो brainstorming है वो स्मॉल ग्रुप में सिखाने या सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। यह एक अच्छा तरीका है जिसमें आप एक नया आइडिया डेवलप कर सकते हैं, नए विचार रख सकते हैं। इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑनलाइन इंटरेक्शन सच एज चैट, ईमेल, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो आप इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वे में कर सकते हैं, डायरेक्शन में कर सकते हैं। ओके, नाउ आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आंसर शेयरिंग। Giving a problem to a group of students gives sufficient time to form a conclusion, quickly evaluate their conclusion, and ask them to share with others. By this, students will be engaged, communicating with the others, and develop a mindset to solve questions. देखिए, आप ग्रुप में स्टूडेंट को क्वेश्चन दे दीजिए और उनको आप पूरा समय दीजिए जिससे वो उनको सॉल्व कर सके और कुछ कंक्लूजन पे आ सके। उसके बाद तुरंत आप चेक करें कि उन्होंने क्या लिखा है, और उनके आंसर आपके ठीक लगे तो तुरंत ही उनको आंसर शेयर करने के लिए बोलिए अदर्स में। इसमें दो चीज हो जाएगी, उनके क्वेश्चन के प्रति आंसर ढूंढने का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। सेकंड, उसका आंसर वेरीफाई अगर हो गया तो उनको अच्छा फीलिंग होगा। इससे क्या होगा, वो स्टूडेंट व्यस्त रहेंगे, दूसरे से बात करेंगे, अपना कंटेंट को शेयर करेंगे और प्रश्न का आंसर ढूंढने का माइंडसेट डेवलप होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। सो मेनी स्ट्रेटेजी आर यूज्ड इन द टीचिंग मेथड like writing exercise, think, pair, share, debate, problem based learning, brainstorming and situation analysis. Then it is considered beneficial for the learners and the teachers. Now next teaching method is
Discussion method. Discussion method is also known as Socratic method. Why it is Socratic method? क्योंकि एक सोक्रेटिक नेम है, here Socratic is name. सोक्रेटिक मेथड इसलिए कहा जाता है कि जो सोक्रेटिक का स्टाइल था वो लोगों के बीच में ज्यादातर जाता था और लोगों से क्वेश्चन पूछता था रिलेटेड टू नेचर, रिलेटेड टू रियलिटी, सच्चाई के बारे में। लोगों से ये पूछते थे कि आपका ख्याल में झूठ क्या है, सच्चाई क्या है, आप रियलिटी से क्या समझते हैं, रियलिटी क्या है, इसके बारे में हर एक चीज के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहते थे और बाद में सारा का ये जब कंक्लूजन निकालते थे। तो डिस्कशन मेथड भी वहीं से आया है। सो इट इज नोन एज सोक्रेटिक मेथड। टीचर यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देने का चांस मिलता है। इसमें स्टूडेंट अपने आइडिया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। जो पॉइंट स्टूडेंट को लगता है वो पॉइंट शेयर करते हैं और जो स्टूडेंट के थिंकिंग होता है वो ज्यादा बढ़ता है। स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है वो बढ़ती है। डेफिनेटली जो है वो एक स्टूडेंट ने कुछ आंसर दिया, दूसरे ने कुछ और दिया, तो थिंकिंग प्रोसेस जो है एक्टिव होता है और इससे उनका लर्निंग जो होता है वो कुछ नया सीख रहे होते हैं। साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है। ओके, नाउ मैं बात करूंगा प्लानिंग और गाइडेड डिस्कशन। किस तरह से डिस्कशन को प्लान करना होता है। टीचर जो है प्लान करता है, और इस तरह से टॉपिक को लेता है ताकि वो टॉपिक के बारे में स्टूडेंट के पास नॉलेज हो पहले से। जब भी टॉपिक टीचर डिसाइड करना चाहिए तो पहले से ऐसा टॉपिक को डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे कुछ उसके बारे में पहले से जानते हैं। और ताकि इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि ताकि सभी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और डिजायर लर्निंग आउटकम्स हो सके, उसको अचीव कर सके। डिस्कशन का जो पर्पस है वो लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना होता है। इसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप क्लियरली स्टूडेंट को बता देंगे कि अब उसमें यह है कि आप कोई एक टॉपिक देते हैं या स्टार्टिंग में ही किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो फर्स्ट आप जो क्वेश्चन रेज करते हैं उससे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, किस टॉपिक पे बात होने जा रहा है। आप अगर टॉपिक पहले बता देंगे तो ज्यादातर स्टूडेंट अपने माइंड में यह आंसर या उस पर कंक्लूजन विचार करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट टीचर्स क्या करते हैं, टॉपिक बता देते हैं। उसके बाद एडिक्वेट रिसर्च। अब टीचर का काम क्या है, जो डिस्कशन स्टार्ट किया, जो टॉपिक डिस्कशन के लिए कर आए हैं, तो टीचर का उसमें काम है कि उससे पूरा रिसर्च करे पहले और हर एंगल से उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उससे मास्टरी हासिल करें, जो स्टूडेंट के क्यूरी हो वो इजिली एड्रेस कर सके। उसके बाद जो उनके मेन पॉइंट है उनको ऑर्गेनाइज करना। बेसिकली जो गाइडेड डिस्कशन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला इंट्रोडक्शन आ जाता है, सेकंड डिस्कशन आ जाता है और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में अटेंशन, मोटिवेशन और ओवरव्यू है। आप स्टूडेंट के अटेंशन के लिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे ताकि वो स्टूडेंट को अटेंटिवली उसको आंसर दे सके, वो अट्रैक्ट हो सके क्वेश्चन से। इस तरह से आप क्वेश्चन उसको ये पूछ सकते हैं स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद वो रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके बाद टीचर का काम क्या है, उनको मोटिवेट करें। टीचर यहाँ पे आप ये बोल सकता है कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस टाइप का वर्ड यूज करके मोटिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप ओवरव्यू करते हैं। आज हमारे जो टॉपिक है इसमें जो आपने पॉइंट दिए हैं ये चीज नजर आए हैं, ये मेन पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पेज है डिस्कशन का। डिस्कशन में टीचर जो है वो किसी एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, लॉजिकली करते हैं विथ ऑब्जेक्टिव। टीचर बताते हैं कि आपने जो चीज बताए हैं ये है, उसमें जो मेन पॉइंट को आप बोर्ड पर लिख देते हैं और स्टूडेंट को बताते हैं कि आपका जो आपने जो डिस्कस किया, आपने जो बताया उसमें मेन पॉइंट जो है ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हाट इज ई लर्निंग, तो स्टूडेंट की तरफ से डिफरेंट आंसर आएंगे, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट टाइप से आंसर देंगे और आप वहां पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आप उसमें से जो मेन पॉइंट है उसको आप क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं और बोर्ड पे लिखकर डिस्कस करते हैं कि ई लर्निंग क्या है और इस तरह से आपने पॉइंट बताया है और ये चीज है। और उसके बाद कंक्लूजन करते हैं कि ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो इससे बहुत ही फायदा होता है। नाउ टाइप्स ऑफ डिस्कशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग, बज ग्रुप, टास्क ग्रुप, पैनल रिपोर्ट। So this is the types of discussion method. Now merits of discussion method. Participation by everybody. फर्स्ट जो है पार्टिसिपेशन बाय एवरीबॉडी, ये सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डिस्कशन तो हो रहा है तो क्लास के हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, एंड देयरफॉर thinks and expression himself or herself. This is the pure way of learning. And next है development of democratic way of thinking. Everybody cooperate in the discussion, and the ideas and opinion of everybody are respected. Thus, there is a development of democratic way of thinking and arriving at decision. Next training is reflecting thinking. रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग क्या होती है? ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। बच्चों को रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग में देखते हैं कि वो जो भी करते हैं वो कितने अच्छे से करते हैं। जब बच्चे डिस्कशन करते हैं तो उनका डीपर नॉलेज गेन होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है। ट्रेनिंग इन सेल्फ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग डिस्कशन, एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस his ideas and opinion in clear and concise manner. This provides ample opportunity to the student for training in self-expression. The spirit of tolerance is inculcated. Learning is made interesting. Now comes to demerits of discussion method. All type of topic cannot be taught by the discussion method because time-taking method. This method cannot be used for teaching small children, and the student may not follow the rule of discussion. Sometimes this happens. Some student may not take part while others may try to dominate. The teacher may not be able to guide and provide true leadership in the discussion. So, dear teacher, I hope you all listen very carefully and आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. So, discussion method can only be followed when the teacher is highly skilled and disciplined. This method is mainly used to utilize the knowledge, experience, creativity of each student when the whole discussion ends and the teachers correct the mistake and clear the debate concept. Now, next teaching method is study assignment method. The assignment method is the most commonly method of teaching, especially in teaching science. Not only science. Now, this method used in the all subjects. It is a technique which can be usually used in teaching and learning process. It is an instructional teaching comprises to the guided information, self-learning, writing skill, and report preparation among the learners. The assignment method is an important step in teaching and learning process. Now, objective of assignment method. It provides good training for information seeking and retrieval behavior. कि बच्चों में वो बिहेवियर डेवलप किया जा सके, जिससे उनको ट्रेन किया जाए कि वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। इट इनकलकेट्स द सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड रिसर्च एटीट्यूड टू द लर्नर्स। इट डेवलप द लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। So it is one of those teaching methods that promote the active learning. This method enhances the research skill ability of students, and the discussion part in the class make the teacher and student know different point of view of each other. Now comes to disadvantage. There are always chance to plagiarism, increasing chance of copy paste. तो इसमें ज्यादा चांस जो होता है वो एक दूसरे के कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना। जब भी आप कभी बच्चों को असाइनमेंट देते होंगे तो देख क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से मांग लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कंप्लीट कर लिए हो तो मेरे को असाइनमेंट दे देना, और उससे कॉपी करके सेम प्रोजेक्ट को ये सबमिट कर देते हैं। तो ये एक चांसेस है असाइनमेंट मेथड में। स्लो लर्नर्स नीड मच मोर अटेंशन फ्रॉम द टीचर। अगेन इट गिव मोर बर्डन फॉर द टीचर। जो स्लो लर्नर होते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, तो उनको टीचर की तरफ से ज्यादा ध्यान देना होता है, तो टीचर के लिए ये बर्डन बढ़ जाता है। द टाइम लिमिट गिवन थ्रेटनेस टू द स्टूडेंट व्हिच मेक द सब स्टैंडर्ड वर्क। आपने हम क्या होता है, जब भी टीचर्स असाइनमेंट देते हैं तो टीचर से एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि इतना डेट को सबमिट करना है, इतने डे को इस डे को सबमिट करना है। तो अगर जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए होते प्रोजेक्ट, तो वो क्या है, कंप्लीट करने के लिए वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, इससे वर्क जो होता है सब स्टैंडर्ड वर्क हो जाता है। एंड द रिपोर्ट राइटिंग इज लिटिल बिट कॉस्टली। और रिपोर्ट राइटिंग है, असाइनमेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है बनाने में, कॉस्ट माने पैसा लगता है बनाने में। नाउ कम्स टू ऑनलाइन टीचिंग मेथड। ऑनलाइन टीचिंग मेथड क्या होता है? ऑनलाइन का मतलब हुआ
जहाँ कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है या कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है जहाँ पे वेब का यूज कर रहे हैं या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। और इंटरनेट का यूज कैसे करेंगे? थ्रू मोबाइल, कंप्यूटर। तो ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड है। ऑनलाइन टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग is an online virtual environment or network environment in which the teachers and learners are separated by a time and a space। जो टीचर होते हैं और जो लर्नर्स होते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। इनके बीच का टैलेंट का गैप होता है, या आप बोल सकते हैं स्पेस का गैप होता है, या लोकेशन का गैप होता है। इसके बाद है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट की। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप वीडियो सुनते होंगे या लेक्चर सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्लास इन्वायरमेंट है। अगर आप ओरिजिनली कनेक्टेड हो तो, जैसे कि अभी आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, अभी का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सभी सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। और कह सकते हैं कि नेटवर्क इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क यूज हो रहा है और इससे टीचर लर्नर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक टीचर होता है और एक या एक से अधिक लर्नर होते हैं। और बात करें तो ऑनलाइन टीचिंग एज ए रिफ्लेक्टिंग ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द वाइडर इंटरनेट इज प्रैक्टिस यूजिंग मेनी डिफरेंट अप्रोच एंड इज एड्रेस टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ यूजर। तो यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, ऑनलाइन जो मेथड होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो जो एप्स के थ्रू पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं वेब के थ्रू पढ़ाते हैं, कुछ पोर्टल के थ्रू पढ़ाते हैं, कुछ एप्स और वेब दोनों को सपोर्ट करते हैं, कुछ टेलीविजन के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे यूज हम करते हैं। जैसे अभी हम लोग जो ऑनलाइन में अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये भी हम एक ये ऑनलाइन टेक्निक है। ऑनलाइन के थ्रू हम एक एप्स के थ्रू ये जो हम लेक्चर दे रहे हैं, तो ये एक वर्चुअल है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल टीचिंग। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, ये सारे ही ऑनलाइन टीचिंग मेथड है। तो अगर मैं बात करूं ऑनलाइन टीचिंग मेथड की, तो पहली बात यह है कि यहाँ पे नो फिजिकल और कैंपस और क्लास सेशन देयर, टीचर्स एंड लर्नर दोनों सामने प्रेजेंट नहीं होंगे, बट कनेक्ट होंगे थ्रू नेट और वेब। और मैं बोल सकता हूं इट इज डिजाइन फॉर हैंडफुल स्टूडेंट और वाइडर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट। और ये जो प्रोसेस है वो मैसिव पार्टिसिपेंट के साथ कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। नाउ कम्स टू ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में एग्जांपल्स ऑफ दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड: वर्चुअल क्लासरूम, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल, स्वयं, मोक्स, स्वयं प्रभा, ओपन सोर्सेज एजुकेशनल रिसर्च। तो ये क्या है, संस्था है। अभी क्या है, अभी हम सब लोग फेस कर रहे हैं कोविड पैंडेमिक में, हम लोग भी जो टीच कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में और डिफरेंट मेथड को यूज करके बच्चों को एजुकेशन को कंटिन्यू रखे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही सपोर्ट किया है इस पैंडेमिक में टीचर्स और स्टूडेंट को। दोनों वर्चुअल प्रोसेस में बहुत सारे चीज सीखे हैं। नाउ कम्स टू ऑफलाइन टीचिंग मेथड। ट्रेडिशनल क्लासेस, ऑफलाइन टीचिंग मेथड इज ट्रेडिशनल क्लासेस, जो पहले से चलते आ रहा है पुराने समय से। ऑन द अदर हैंड ऑफर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन ऑफ practical approach to teaching, meaning that they can still be as important as the teacher makes them be. For example, practical workshop and team exercises are always done better in offline analog environment. यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता है ट्रेडिशनल क्लासेस होती है, जब हम फॉर्मल सेटअप पे बैठ के बात करते हैं, तो आपने क्लासेस करते थे जो एक फॉर्मल सेटअप होता था, उसको ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग कर सकते हैं। कोई भी एक वेब का यूज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, वेब का यूज नहीं होता है। तो ऑफलाइन एजुकेशन में यू हैव टू ऑप्ट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन और एकेडमी फॉर लर्निंग पर्पस। यहाँ पे आपको जाना नहीं होता है, इनरोल नहीं करना होता है, या यहाँ पे आपको जाना होता है, इनरोल करना होता है, फी पे करना होता है। तो ये ऑफलाइन टीचिंग मेथड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन टीचिंग मेथड: क्लासरूम लेक्चर, इन हाउस टीचिंग मेथड,
you can say coaching and tuition, discussion, demonstration, case study. So this is the method of the ऑफलाइन टीचिंग मेथड. सो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा टीचिंग मेथड. नाउ comes to conclusion of the today training. Now you people have seen different teaching methods that all teachers should know, and by knowing these teaching methods you make the classroom a more creative and dynamic place for students to get qualitative education. Dear teachers, in the next session, we will talk about different teaching strategies. If I discuss the continue different strategy, it becomes very long. So I split it into the two sessions. Okay. And I would like to thank the CBSE school management, principal who gave us the opportunity to be the host. So thank you everyone. I hope this session is beneficial for you all. Now I'm going to invite Principal Ma'am for giving feedback on the today online training. Principal Ma'am. Now you can fill attendance after the feedback of Principal Ma'am. Yes, yes, ma'am. Thank you, ma'am, for valuable your feedback. So thank you, everyone. I hope this session is beneficial for you all. Now you people can fill attendance, and you can see the attendance link in the chat box. And those participants who have filled the attendance can leave. You can see attendance link in the chat box.
Those participants who have filled the attendance can leave.